everybody, मैं हूँ रश्मि, आपकी टैरो कार्ड रीडर, ब्रिंगिंग टू यू द नेक्स्ट सेशन ऑफ टैरो मैजिक। टैरो आप जानते हैं, इट्स एन एंशिएंट एंड मिस्टिकल आर्ट ऑफ डिविनेशन। और जो जिप्सी सेयर्स थे पिछले ज़माने में, सेंचुरीज अगो, उन्होंने ये कार्ड्स को इन्वेंट किया था। एंड ये कार्ड्स एक्चुअली दे लिटरली स्पीक टू यू। इनमें इनके आसपास एनर्जीज हैं एज वेल एज दे आर फिगरेटिव। सो इनके जो फिगर्स हैं, दे से थिंग्स टू यू। So you have to understand these cards, and each card has many different meanings. So try and get hold of the tarot deck and understand for yourselves, because not only do they make prophecies for you, आपके future तो बताते ही बताते हैं, but also they are very good for your day-to-day situations, day-to-day problems. So let's see what's in store for all of us this coming week, and I'll begin with Aries. Aries, be very careful. You could be hospitalized, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आप थोड़ा सा सीरियस टर्न लेगी आपकी हेल्थ वाइज, एंड सम ऑफ यू कुड बी गोइंग फॉर अ सर्जरी, बट यू विल ओवरकम इट, नो प्रॉब्लम। वर्क फ्रंट इज ग्रेट। इनफैक्ट अ ट्रापार्टाइड अरेंजमेंट, थ्री जो पार्टीज में अरेंजमेंट होगा वो ठीक रहेगा अभी आपके लिए। गायत्री मंत्र चांट करें टू गेट आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, टू गेट हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स। सो 3 इज योर नंबर एंड रेड इज योर कलर। Taurus. Taurians, travel is on the cards. Definitely travel, work related भी हो सकता है, which can bring you good luck, good success, and you are going to overcome some major hurdle this coming week. ये आप याद रखना। Your younger one, maybe your daughter has to be looked after. कुछ ना कुछ मतलब problem हो सकती है with your daughter, your child. So उसको थोड़ा सा ध्यान दें, जस्ट ध्यान दें। एंड वर्क फ्रंट आपका ठीक चलेगा। 2 projects are being handled together. 7 is your number and yellow is your color. Gemini. Geminins, love is in the air. Wow. So those of you who are unattached, abhi you will have a proposal or maybe a romance, a romantic situation, and जो सोच रहे हैं शादी के लिए, they'll tie the knot or at least get engaged इस coming week में। लीगली अच्छा पीरियड है। सो जो लीगल बैटल जो लड़ रहे हैं उनकी जीत है। एंड थोड़े से बस मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको आपने कंट्रोल करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड समथिंग न्यू वर्क फ्रंट पे जो आपका ऑलरेडी चल रहा है, बी हैप्पी विद दैट। डोंट ट्राई एंड गेट इनटू समथिंग न्यू। एटलीस्ट इन दिस वीक में आपने कुछ नया नहीं अभी स्टार्ट करना। ओम नमः शिवाय का चांट आपको हेल्प करेगा। 8 इज योर नंबर एंड ब्लू इज योर कलर। Cancer, creativity is your mantra for the coming week. Whatever you do creatively will be good, will be accepted. And जो creative field से हैं, जैसे कि into jewelry, into fashion, they are going to do in any case very well. And home front is great. आपको home front से भी support है, and you're keeping the peace and balance and harmony. Some of you are taking an adventure trip, adventure holiday के लिए जा रहे हैं. Also, allow new things to happen to you, new opportunities to come to you. So allow also new friends to come to you. So Ahum Prema is your mantra, and pink is your color and 4 is your number. Leo. Leons, आपको protection है from your guides, from your spiritual guides, as well as maybe somebody you believe in. So आपको काफ़ी protection है, things are going well in your work front. So even if there's a hurdle, कुछ भी अगर problem आ रही है तो उसके लिए आपको एक solution भी मिलेगा. And you have a wish card. So some wish of yours जो अभी तक true नहीं हुई थी, वो अब इस week में it's going to come true, and you are celebrating कुछ ना कुछ अच्छा news, maybe something good is happening. Socially आप काफ़ी hectic हैं, social front hectic है, or as well as your work front. So you need to calm your nerves, balance your time a little, and look after yourself also. So 9 is your number and blue is your color. Virgo. Virgons, unions and romance and friendships. So this week, the highlight of this week is getting together and romance, as well as friendships. So the thing is that you are not looking at the larger picture. So work front पे things are little delayed, क्योंकि आप सिर्फ अपने ही नज़रिए से एक चीज़ को देख रहे हैं. Try and look at it from the larger picture. So अगर आप दूसरे, this also means अगर आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके चलेंगे, साथ में टीम के साथ चलेंगे, you will find success. That is very important for you.
दिस कमिंग वीक। एंड नेगेटिव नहीं सोचना है, एक तो पॉजिटिव क्रिएट करो कर्मास, एंड जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको हटाने के लिए वेरी इजी मेथड, टेक अ ब्लैक कैंडल एंड लाइट इट एटलीस्ट वंस दिस वीक, दैट विल रियली हेल्प यू। सो 8 इज़ योर नंबर एंड ऑरेंज इज़ योर कलर। लेट्स टेक ऑन अ फ्यू कॉलर्स। अब हमारे साथ लाइन पे है अभिषेक। अभिषेक, वेलकम टू टैरो मैजिक। थैंक यू, शुक्रिया। आप क्या जानना चाहते हो अभिषेक? अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। माय डेट ऑफ बर्थ इज 12/4/1981। ओके, और आप क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा बाइंग डिसीजन होता है वो है घर खरीदने का। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था और अब थोड़ा बहुत मन बना चुका हूँ। सो जस्ट थिंकिंग कि क्या ये राइट टाइम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इतना शुभ चीज़ करने के लिए और इतना अच्छे जो प्रपोजल आपने बताया, टू बाय अ हाउस फॉर योरसेल्फ इज सच एन अमेजिंग थिंग, ऑस्पिशियस थिंग। तो राइट टाइम तो है ही, और कभी भी हो सकता है फॉर योर ओन हाउस, बट अभी भी थोड़ा टाइम लग जाएगा आई फील। सो अबाउट 3 months के विद इन। सो इस ईयर में तो कर ही लें आप, इट्स अ गुड टाइम, बट इवन इफ इट टेक्स 3 weeks to 3 months, ये हो जाना चाहिए ये काम। अब हमारे साथ लाइन पे है श्रुति। श्रुति, वेलकम टू टैरो मैजिक। ओके, सो श्रुति, आर यू विद अस? आप हैं लाइन पे? या अच्छा श्रुति, आप बताएं, आप हमारा शो देखते हो? जी बिल्कुल, तभी आपसे सवाल भी कर रही हूँ मैं, बिकॉज योर प्रेडिक्शंस आर वेरी रियलिस्टिक। ओके, ग्रेट। सो आप रेगुलर वॉचर है हमारे शो के। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। आई लव इट। ठीक है, तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं एंड क्वेश्चन बताएं। 11th October 1979। ओके, एंड क्या जानना चाहते हो श्रुति? I'm having health issues, not major ones, but whatever minor ones also. Not just me, most of the people in my family who are like associated. See, there's one card which says, yes, it says that minor. See, जैसे आपने बोला माइनर हेल्थ इश्यूज है, इवन अदर इश्यूज हैं, नॉट जस्ट हेल्थ इशू। ये थोड़ा सा पीरियड जो गया है इतना ठीक नहीं रहा है, बट फॉर यू पर्टिकुलरली एक बहुत ज़रूरी काम है, वाइट लाइट मेडिटेशन, विच इज़ वेरी सिंपल। आप लोटस पोजीशन में बैठ जाइए, हर रोज़ सुबह आपने ये 10 minutes करना ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इमेजिन अ वाइट और अ सिल्वर लाइट कमिंग टू यू, और वो पूरी लाइट आपको एनवेलप कर देती है, और उसी को आप ब्रीथ कर रहे हैं अंदर। एंड व्हेन यू आर एक्सपेलिंग आउट, रिमेंबर, जब आप उसको निकाल रहे हैं ब्रेथ को, सो वो सारा जो नेगेटिविटी है, सो आपके साथ मुझे नहीं लगता कुछ इतना मेजर इशू है, पर ये जो टाइम टू टाइम जो स्मॉल नेगेटिव एनर्जीज़ के वजह से जो आप बीमार पड़ रही हैं, तो ये वाइट लाइट मेडिटेशन से सारा अपने आप को क्लेंज करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू विल सी, यू विल फील वेरी गुड विद इन अ वीक। ये आप करके देखिए। Begin with Libra. Librans, you have the Sun card, which is very good. So means material progress, family happiness, all that goes with the Sun. Maybe even a holiday. And a wish card is also there. So something we were hoping for, कुछ hope आप कर रहे थे, अब वो आप expect कर सकते हैं. But work front is a little tension, थोड़ा tension है, competition भी है, and you're struggling about something. But because you have the Sun card, you will pull through. So it's a good period. But also अपने energy जो आपकी थोड़ी low हो रही है, अपने energy levels को थोड़ा high रखना है. East में आप थोड़ा east के zone है जो आपका, east को heighten रखें, थोड़ा सा उसको जैसे plants रखें वहाँ या कोई pebbles रख लें. So that will also bring you luck as well as good energy levels. So 5 is your number and yellow is your color. Scorpio. Scorpions are discontented. कुछ ना कुछ आप ढूंढ रहे हैं. You're searching within you. Introspect भी कर रहे हैं that what is going wrong and why are you not so happy. So try and not find happiness from outside. It is within you. So जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. Introspect. Where are things going wrong? But the other card says that it's a period of renewal. So even if you're feeling a little low on the emotional front or you're discontented, तो एक रिवॉर्ड का पीरियड भी अभी आपको आ रहा है, रिन्यूअल का पीरियड आ रहा है. सो ये अच्छा होगा इस वीक में. ऑल इन ऑल इट्स गुड.
So also appreciate all the things coming to you. How you are so much better than so many others. So एक तो appreciative gratitude दिखाएं, appreciate करें and thank the universe. So that is important for you. 2 is your number and violet is your color. Sagittarius. Sagittarians are using the intuition. आप अपना माइंड ना यूज़ करके अपनी गट फीलिंग जो कहते हैं ना, अंदर से जो फीलिंग आती है वो आप फीलिंग यूज़ करके आप एक डिसीजन ले रहे हैं एंड ये ठीक बात है. सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग अक्रॉस द वाटर, तो जर्नी अक्रॉस वाटर इज़ फॉर सम ऑफ यू ऑन द कार्ड्स. बट एक कोई नया चीज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको हेजिटेशन भी लग रहा है. सो मे बी दिस इज़ नॉट ऑल फॉर द बेस्ट. So there are many other things many other avenues will come up. So probably this particular one you should not be getting into because it's going to be a false start. So it's not such a great thing. North West को आप energize करें. North West में plants रख लें and try and look after those plants yourself. This is very very important. So 1 is your number and red is your color. Capricorn. Capricornians, somebody from your past is coming back. Maybe you're also getting together with your friends and your old friends especially from the past, and you're going down memory lane and you're remembering the old times. But at work front you're feeling overworked and overpressured. So थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान दें, थोड़ा एक्सरसाइजेस करें, योगा करें. Hear calming music that calms your mind because काफ़ी प्रेशर है अभी. Health wise you're good, you're feeling very positive. But if you want to change something in your environment, remember आपको खुद को अपने आप change करना है. So if something is going wrong, maybe at your home front or in your office, remember अपने attitude को पहले देखिए, अपने attitude को change करें, and once you change that, you will feel so good because your environment itself will change. So 7 is your number and brown color pen. Aquarius. Aquarians are into many things at the same time. You have your fingers in many pies. So अभी टाइम है कि आप प्रायोरिटाइज करें बिकॉज अगर आप अपनी एनर्जीज बहुत सारी चीज़ों में इकट्ठा एक्सपेंड करेंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर थिंग. सो थोड़ा सा फोकस लाएं और प्रायोरिटाइज करें. सो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको पहले कंप्लीट करें एंड थोड़ा सा हट के काम करें. ट्राई एंड डू समथिंग विच इज़ नॉट सो रूटीन, थोड़ा डिफरेंट. लुक आफ्टर योर सेल्फ. Go out for go and enjoy with your friends. So because all work and no play makes Jack a dull boy. So thoda sa extra outdoor activity करें. And it's also a time for a change. So change your mindset more importantly and be more tolerant and adaptable. Blue is your color and 6 is your number. Lastly Pisces. Pisces money wise जो आपकी कमिंग वीक है उसमें मनी का बहुत ज़्यादा महत्व है. एक तो आप इफ़ यू आर इनटू प्रॉपर्टीज़ बाइंग एंड सेलिंग सो कहीं ना कहीं से पैसा आएगा. मे बी यू आर सेलिंग समथिंग एंड इफ यू आर बाइंग समथिंग ऑल्सो इट्स अ गुड पीरियड. सो मनी वाइज इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड दोज ऑफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग जो बिजनेसमैन हैं थिंकिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज थिंकिंग ऑफ अ पार्टनरशिप. सो डू समथिंग इन अ पार्टनरशिप दैट विल बी हेल्पफुल एंड कहीं ना कहीं से पैसा आपके एफर्ट से भी और अदरवाइज भी आने वाला है. सो मनी वाइज इट्स अ ग्रेट पीरियड. एमेथिस्ट क्रिस्टल को एक लें, उसके ऊपर अपना विशेज़ लिखें पेपर पे और पेपर को एमेथिस्ट क्रिस्टल के नीचे रखें. सो दिस वे योर विशेज़ विल ऑल्सो कम ट्रू. सो 3 इज़ योर नंबर एंड ग्रीन इज़ योर कलर. सो दैट्स ऑल फॉर आवर प्रेडिक्शंस. लेट्स टेक ऑन अ फ्यू कॉलर्स. अब हमारे साथ लाइन पे है अर्पिता. वेलकम टू टैरो मैजिक. हाय मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल है. पहले आप बताइए आप हमारा शो देखती हो कि नहीं? जी बिल्कुल मैम, मैं आपका शो देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो देखना. आपके जो आंसर्स होते हैं वो बेहद मतलब सिंपल होते हैं, इसीलिए मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है. आप मुझे डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं. मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/8/1987. ओके. और मैम मेरा सवाल है कि काफ़ी टाइम के 6 महीने से मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है और खासकर मुझे रात में सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. मैं सो नहीं पा रही हूँ, लगातार मेरी आँख खुल जाना है, कुछ समथिंग की हाँ कुछ नेगेटिव मेरे आसपास है. तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकती हूँ? वो आप दिमाग से निकाल दीजिए. नेगेटिव आसपास नहीं है, इट्स जस्ट योर ओन माइंड. एंड ये जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है मे बी आपके चक्रस ब्लॉक्ड हैं. सो आप
इफ़ यू कैन डू दिस आई विल बी ग्रेटफुल कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक्स के लिए जब जाते हैं उस टाइम आप अर्ली मॉर्निंग रेज जो है प्राणा ऑफ द सन जो अर्ली मॉर्निंग की होती है वो इनहेल करें. सो गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इवन इफ इट इज़ 10-15 मिनट्स और प्राणा ऑफ द सन लें एंड यू विल सी आपकी जो नेगेटिविटी फील हो रही है वो आप एक तो पॉजिटिव फील करेंगे, हाई एनर्जी लेवल्स आ जाएंगी आपकी वापस. एंड एक और काम कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट या इवन नॉर्मल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट नहीं है आपके पास, उसको क्रश करके अपने आधा चम्मच अपने बकेट ऑफ वाटर में डालें और उससे नहा लें. डू दिस ट्वाइस अ वीक विद बाथ विद रॉक सॉल्ट. और जो नींद नहीं आ रही आपको रात को जो उठ जाती हैं, लैवेंडर ऑयल आता है, एसेंशियल ऑयल, उसका 2 बूंद छिड़क दो अपने पिलो पे. दैट विल हेल्प यू. अब मैं आपको टैरो कार्ड ऑफ द वीक दूंगी. जो ये कार्ड होता है इट हेल्प्स यू टू मेक योर वीक अ वेरी सक्सेसफुल वन. सो इट्स अ mantra or a tip that I give you with which you can make your week happy and prosperous. So ये मैं elements के according देती हूँ. So fire elements which are Leo, Sagittarius and Aries. आपके लिए जो कार्ड आया है, a daily regime of some kind of exercise, a walk, yoga, ये करना आपको ज़रूरी है. एटलीस्ट इस वीक में करें and see how nice you will feel. So earth signs which are Capricorn, Virgo and Taurus. Green मतलब तो नेचर में या प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. नहीं तो एक जेड क्रिस्टल होता है ग्रीन, इसको ले आएं और अपने बेड साइड टेबल पे रखें. So this will help you in this to give you not only harmony and balance but also good luck. So air signs which are Aquarius, Gemini and Libra. आपके लिए जो कार्ड आया है येलो कलर का जो एक क्रिस्टल होता है, इट्स कॉल्ड टाइगर्स आई. इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट वेरी गुड. अदरवाइज पीला कपड़ा लें थर्सडे के दिन और उसका दान करके देखें एंड दैट विल बी very good for you. So lastly which are water signs which are Scorpio and Cancer, Pisces. आपके लिए बहुत इजी है. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अगरबत्ती जलाएं या एक डेटी रख दें. जैसे लाफिंग बुद्धा होते हैं, गणेशा होते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट में ये हर रोज़ करें इस कमिंग वीक. So now let's talk about crystals. Now crystals, you know, we have healing energies. They have वाइब्रेशंस अराउंड देम. सो उन वाइब्रेशन से क्या होता है, जो हमारे चक्रस हैं वो हील्ड फील करते हैं. चक्रस ओपन अप हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं. सो जो स्लगिश होते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है चक्र में. सो थ्रू दीज क्रिस्टल्स दे गेट रिफ्रेश्ड एंड यू फील ओवरऑल rejuvenated and very whole and happy. So one should use these crystals not only for your chakras, not only for your physical body, but also for meditative purposes, for healing, as well as इनकी जो metaphysical properties हैं, they bring you love, luck and fortune and everything, lots of things, protection even. So इनको आप use करें abundantly, but do clean them. इनके ऊपर जो मिट्टी फंस जाती है, रह जाती है, या क्योंकि ये नेगेटिविटी को सोखते हैं, को पुल करते हैं अपनी तरफ, तो नेगेटिविटी उनके ऊपर से हटाना ज़रूरी है. सो रनिंग वाटर के नीचे रखें. दैट्स द बेस्ट वे टू टेक आउट द नेगेटिविटी आउट ऑफ क्रिस्टल्स एंड देन क्लीन देम एंड देन रीयूज देम. सो एक क्रिस्टल के बारे में आपको आज बताऊंगी, सेराफेनाइट. नाउ सेराफेनाइट इज़ अ वेरी एंजेलिक crystal which makes you connect to the angels. So especially जो angel healings में believe करते हैं वो सेराफेनाइट यूज़ करते हैं. And also it's a very calming crystal. It makes you feel whole. So it makes you feel very complete. So it's a great crystal. Now another one is tanzanite. You see a lot of us, हम लोग हाइपर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं. तो जो हाइपर माइंड या हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए टैंजनाइट होता है. और टैंजनाइट जो है आपके सारे चक्रा को एक तो इंटरकनेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है, ओपन अप करता है, प्लस जो हार्ट और जो माइंड का चक्र को जो के बीच में कनेक्शन दिला देता है. सो इट्स अ वेरी अमेजिंग क्रिस्टल, द टैंजनाइट. सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल्स. लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम्स. नाउ जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक्चुअली इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर.
a software which has all kinds of recordings. So हमारी day, not only of this life, even in our past lives. So it's all there in our subconscious mind. So जब हम सो रहे होते हैं, active mind is not alert. It's the subconscious mind that makes you see various situations. And actually जो आपके waking life में हो रहा होता है, वो आपको sleep में भी दिखता है. So it's nothing but your waking situations. So they are actually, dreams are about foretelling you about something that is to come, or also that solving certain problems for you from time to time, and clarity भी मिल रही है आपको through your dreams. So इसलिए dreams को note कर लेना चाहिए ज़रूर. So today I'll tell you about a dream is a toothbrush. जब आप देखते हैं कि आप अपने teeth को brush कर रहे हैं with a toothbrush, so it means nothing but you being defensive, and you are also protecting yourself from maybe hurt. So and you're brushing away your problem. Now another dream is about pain. जब आपको लगता है या आपको feeling होता है, आपको pain लग रहा है dream में, so it means also you being very hard on you or harsh to yourself. So also it depends के कहाँ पर pain हो रहा है. जैसे कहते हैं ना pain in the neck. So that literally means कि आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं या कोई आपको तकलीफ दे रहा है, is being a pain in the neck. Pain in the shoulders means काफ़ी सारा burden. So on and so forth. So that's all for our dreams. Let's get back into reality. अब रियलिटी में मैं आपको बताती रहती हूँ कि हम अपना मैजिक खुद क्रिएट कर सकते हैं. हम डे टू डे अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं. वी कैन ब्रिंग इन लव लक, वी कैन ब्रिंग मनी, वी कैन bring peace and harmony with our partners by doing small things for ourselves. So today I'll give you a tip of how to bring peace and harmony. So the best way and a very simple way is a green candle. एक green candle को लें, and जब moon बढ़ रहा होता है, जैसे कि आजकल moon बढ़ रहा है, तो green candle को आप जिसके साथ आपको अपनी फ्रेंडशिप रखनी है या पीस प्रमोट करना है, तो उसका नाम और अपना नाम उस ग्रीन कैंडल पे लिख लें, और ऑलिव ऑयल के साथ कैंडल को ड्रेस कर दें, मतलब रब कर दें कैंडल के ऊपर, फिर उसको बर्न करें अपने बालकनी में या टेरेस पे जाके, एंड उस कैंडल की तरफ देखें जब वो बर्न हो रही है. सो दैट प्रमोट्स पीस एंड हार्मनी. दिस इज सिंपल कैंडल मैजिक. सो ट्राई दिस आउट दिस कमिंग वीक, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम शो. टिल देन, टेक केयर.